رحمت ہے، نہیں میں آیت پڑھ رہا ہوں، رحمتا رحمت ہے۔ آپ چوپی کر گئے یار، ایک منٹ ٹھہریں آپ، اب اس آیت کو یہیں روک کر سورہ ہود کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن حکیم کا 11واں سورہ اور 120 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اگر آپ سارے آنے والوں کو ایسے دیکھیں گے پھر میرا تو کام ہو گیا نا جی۔ آپ بھی میری طرف دیکھیں، آپ بھی میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، آپ بزرگ ہیں، جتنی میری عمر ہے اتنا آپ کا تجربہ ہے، تو آپ میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ ابھی میں سورہ ہود پڑھ رہا ہوں، یہ 11واں سورہ ہے اور میں 120 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ محمد جی، ہم جو آپ کے ساتھ رسولوں کے واقعات میں سے کچھ قصے بیان کر رہے ہیں نا، اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ کون اور کن سے؟ مصطفیٰ سے۔ کیا رسولوں کے قصوں میں سے کچھ قصے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں نوح کا قصہ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو اس میں کشتی نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اس کے کشتی کے جو غلام نبی کے بیٹھے ہیں صحابہ، وہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ آپ سنی ہیں سنی رہیں، آپ شیعہ ہیں شیعہ رہیں، لیکن اس بات کو مانیں کہ اللہ مصطفیٰ کے ساتھ نوح کا بھی ذکر کر رہا ہے اور نوح کے صحابہ کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور نوح کی آل کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور نوح کی اولاد کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ اولاد حلال ہے کہ حرام ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ نوح کے بیٹے کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا ہے، لیکن بہرحال اللہ فرما رہا ہے وہ 80 بندے جو کشتی پر نوح کے ساتھ تھے وہ تو مرید تھے نا، تو نبی کے صحابہ کا ذکر بھی اللہ کر رہا ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے میں اللہ پتہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ مولا کیوں؟ ما نثبت بہ فؤادک، قیامت تک جو اس ذکر کو سنے گا اس کے کمزور دل کو طاقت ملے گی۔ پتہ چلا نبی کے، نوح نبی کے صحابہ کے ذکر سے کمزور دل کو طاقت ملتی ہے۔ اب آپ سبحان اللہ جا کے گھر لسی پی کر کہہ لینا کہ اگر نوح اور باقی نبیوں کے صحابہ کے ذکر میں اتنا فیضان ہے تو محمد کے صحابہ کے ذکر میں کتنا فیضان ہوگا۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، لیکن ابھی آیت ختم نہیں ہو رہی۔ مالک فرما رہا ہے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ۔ اللہ عمر دراز کرے بیٹا، آپ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی یہ پچھلے رسولوں کا ذکر ہی میری مخلوق کو حق تک لاتا ہے، یعنی حق تک آنے کا وسیلہ ہے نبیوں کا ذکر۔ نہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، نبیوں کا ذکر، پھر سجن شاہ ذرا قرآن دینا یار، انبیاء کا ذکر حق تک آنے کا وسیلہ ہے۔ نہیں میں آگے بڑھوں گا، انبیاء کا ذکر اب تک جب تک سارے نہیں بول سکتے میں آگے آیت نہیں پڑھوں گا۔ بھائی انبیاء کا ذکر مخلوق کو حق تک لاتا ہے۔ اب یہ سورہ آل عمران کھل گیا ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ 61 نمبر آیت ہے، اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس میں مباہلہ آیا ہے، یہ سارا مباہلہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اِنَّا، شک نہ کرنا، ہَذَا، یہ جو سارا پیچھے واقعہ ہے، لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ، اس میں جتنے لوگ آئے ہیں سارے حق ہیں۔ پتہ چلا علی حق ہے، نہیں مزہ آیا، علی حق ہے، نہیں مزہ آیا، علی حق ہے، نہیں مزہ آیا، علی حق ہے، پتہ چلا فاطمہ حق ہے۔
पता चला हसन हक है, पता चला हुसैन हक है। अब अल्लाह फरमाता है ये जितने किस्से हैं कायनात में सारे नबियों और रसूलों और सहाबा के, ये पढ़कर बंदे हक तक आते हैं। मजा आ रहा है जनाब, स्वाद आ रहा है। नहीं, एक मिनट ठहरिएगा शाह जी एक मिनट ठहरिएगा। हाफिज शहबाज साहब सुने, आज नया तर्जमा दे रहा हूं। आपका कैमरा चल रहा है ना जी, चल रहा है ना जी। इन सारी आयतों को सुनने के बाद 2 + 2 = 4 की तरह नतीजा ये निकल रहा है कि अल्लाह फरमा रहा है शक ना करना, शान अबू बकर की पढ़ोगे तो समझ में अली आएगा। आए हाय, बोलो जिसे समझ आई है बात। जाओ मेरी सारी तकरीर को दोबारा दोहराओ जाकर, सारी गुफ्तगू को दोबारा दोहराओ जाकर, सारी आयतों को दोबारा सुनो, सारे नतीजों को दोबारा सुनो, तो तुम्हें समझ आएगी कि मैं ठीक कह रहा था कि शान अबू बकर की पढ़ोगे तो समझ में अली आएगा। हाय, जीते रहो जिसे समझ आ रही है बात। अल्लाह आपको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। अब अल्लाह पाक ने फरमाया व मौइज़तु, यही तो वाज़ है, यही तो वाज़ है, यही तो वाज़ है। नहीं, मैं नई आयत पढ़ के जब मैं आपको पढ़ूंगा तो बता के पढ़ूंगा, अभी मैं वही आयत आगे पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है यही तो वाज़ है। नहीं मैं समझा सका अपनी कमिलमी नालायकी और ना अहली की वजह से। मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूँ, सारी उम्र बंदा मर जाए इबादत पर तकरीरें कर करके, अल्लाह उसे वाज नहीं कहता। इधर यारों का जिक्र आ जाए, अल्लाह कहता है ओए ये है वाज, ये है वाज। अच्छा ये वाज है। अब वाज का माना क्या है? नसीहत है। अल्लाह फरमाता है ये है नसीहत। लजपालों का जिक्र नसीहत है, लजपालों का जिक्र हक तक लाता है, लजपालों का जिक्र हमें हिदायत देता है। नहीं, ये तो जिक्र है अंबिया का, रसूलों का, उनके गुलामों का, उनके सहाबा का, उनकी अज़वाज का, उनके साथ निस्बत वाले जानवरों का। चौरी साहब जरा उठ के बैठो जनाब, हला दो इन्होंने बुजुर्गों, बस ठीक है। लो जी जरा गोडे थले करके बैठो, गोडे थले कर दो जरा, एक बारी सुभान अल्लाह कह लिया जी जरा। लो मेरे नौजवानों, मैं सूरह कसस की तरफ बढ़ता हूं। अभी ये आयत भी पूरी नहीं हुई जो मैंने शुरू की थी। मैं सूरह कसस की तरफ बढ़ता हूं। अच्छा नहीं, आपकी खामोशी बता रही है कि मैं नहीं बढ़ रहा। नहीं, आप ठंडा बोले हैं फिर मैं नहीं पढ़ सकता। मैं आपको दोबारा चांस देता हूं। मैं वो तो बात गई ना, जाया हो गई, आपकी खामोशी की वजह से बात नहीं मैं कर सका। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर चुप रहे तो हो सकता है मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊं। मैं सूरह आराफ को देख रहा हूं। अब मैं जिस मंजिल पर हूं उसमें अमाल का बादशाह मलून है, लानती है, नबी के खिलाफ जंग में है, और अमालका के सामने जनाबे मूसा की उम्मत के वली हैं, वो जंग कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, मोहम्मद जी मैं बेदिल का दिल कर रहा है, आज आप मिंबर सजाकर अपने गुलामों को बिठाकर मेरे नबी मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करो। फिर से कह रहा हूं, मेरे नबी मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करो, वलियों का जिक्र करो, वलियों का जिक्र करो। यार वलियों का जिक्र करना अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, सहाबा की सीरत है। शरीयत में इसी को इबादत कहते हैं। जो हुक्म अल्लाह का हो, सुन्नत नबी की हो, सीरत सहाबा की हो, इसी को इबादत कहते हैं। अब आप घर जाके सुभान अल्लाह कहिएगा कि अगर मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र अल्लाह की इबादत हो सकता है तो फिर मुस्तफ़ा की उम्मत के गौसुल आजम का जिक्र कितनी बड़ी इबादत हो, फिर मुइनुद्दीन का जिक्र कितनी बड़ी इबादत होगा। ठंडा बोल रहे हैं, फिर पाक पतन वाले फरीद का जिक्र कितनी बड़ी इबादत हो। तो अब अल्लाह ने फरमाया फाकशुशिल कससा, महबूब मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करो। या अल्लाह कोई फायदा? फरमाया लअल्लहुम
यतफक्करून, इनकी फिक्र बदलेगी, फिक्र, इनकी फिक्र बदलेगी, इनकी फिक्र बदलेगी। चौधरी थोड़ा मेरी तरफ देखो यार, आगे हो के आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। इनकी फिक्र बदलेगी, फिक्र, इनकी फिक्र बदलेगी। पता चला वलियों के जिक्र से बंदे की फिक्र बदलती है। नहीं, इस फिक्र का ताल्लुक इंसान के अंदर से होता है, अंदर से। पता चला वलियों के जिक्र से बंदे का अंदर बदलता है। ठंडा बोले हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वलियों के जिक्र से बंदों के अंदर बदल जाते हैं। किरतो शरीफ वालों, अगर किसी का अंदर बदल जाए तो आपको पता है क्या होता है। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब किसी का अंदर बदल जाए ना, तो मैं उसके बाहर के हालात बदल देता हूँ। पता चला वलियों के जिक्र से बंदे का अंदर भी बदलता है, घर के हालात भी बदलते हैं। नहीं मजा आया, फिर कहने लगा हूं, वलियों के जिक्र से बंदे का अंदर भी बदलता है, घर के हालात भी बदलते हैं। नहीं, अब मुझे दें, इस बात पर फैसला दें। मेरे सामने कोई बच्चे नहीं, 2-3 बच्चे हैं, सारे बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, परे के लोग बैठे हैं, लोगों की परे नबेड़ने वाला तबका मेरे सामने बैठा हुआ है। हमने 4-5 आयतों को पढ़कर इस बात को समझा कि अल्लाह वाले हों, वो नबी हों, वो रसूल हों, वो पिछले रसूलों के गुलाम हों, उनके सहाबा हों, उनकी बीवियां हों, उनके औलाद हो, उनकी निस्बत वाले जानवर हों, या उनकी उम्मत के वली हों, उनके जिक्र में हिदायत भी है, उनके जिक्र में रहमत भी है, उनके जिक्र में आसरा भी है, उनके जिक्र में, उनके जिक्र में, उनके जिक्र में। मिस कर रहा हूं मैं चकपटियां वाले को। अगर ये मजमा पटियों वाला का होता तो इस वक्त मजमा मंजिल किसी और पर बैठा होता। उनके जिक्र में हिदायत भी है, आसरा भी है, सहारा भी है, रहमत भी है, सबक भी है, दिल की मजबूती भी है, हक तक रसाई भी है, अंदर भी बदलता है, घर के हालात भी बदलते हैं, नसीहत भी मिलती है। अगर इतना फैज नबियों के जिक्र में है तो ये सारे नबी हाथ बांधकर मुक्तदी बनकर जिसके पीछे खड़े हों, अल्लाह ने मुस्तफा के जिक्र में कितना फैज रखा होगा। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ गई उतना सुभान अल्लाह कहोगे। अल्लाह ने मुस्तफा के जिक्र में कितना फैज रखा होगा। नहीं नहीं, क्या फैज होगा मुस्तफा के जिक्र में। अल्लाह आपको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। यकीनन मुझे मजा आ रहा है आपने गुफ्तगू करते हुए, आप मेरे हर लफ्ज का मुझे मोल दे रहे हैं, बोल बोल कर सुभान अल्लाह कहते हुए। जिक्र रसूल अगर छिड़ जाए और